We are doing numericals on electric field. This is first numerical. When a test charge of 2 nanocoulomb is placed at the origin and experience 8 10 power minus 4 Newton force in plus y direction, what is the electric field at origin? You have to find this one. Let this is x direction and this is y direction, and here is test charge placed, and that test charge Q0 is given by 2 nanocoulomb. And this test charge is positive one, and electric field direction, this is the direction I am here giving you, electric field direction. This is positive side and this is negative side. And electric field is given by force by test charge, and force is given to you. You will put here 8 10 power minus 4, and test charge is 2 nanocoulomb, 2 nano 10 power minus 9. Cancel with this, you have minus 5 and this cancel with, therefore electric field comes out to be 4 10 power 5 Newton per coulomb. This is the answer. Now further this extension of the question is, if minus 4 nanocoulomb is placed, अगर इसकी जगह माइनस 4 नैनोकूलम चार्ज प्लेस कर दें यहाँ पे, what will be force experience? You know force experience is from this equation, electric field into test charge. What is electric field? 4 10 power 5. You here test charge or any other charge you can take, and charge is minus 4 nanocoulomb, minus 4 nanocoulomb 10 power minus 9. If you multiply this 4 16 and this 5, this here minus 4, you have 10 power minus 4 Newton. This much force experienced by the charge of minus 4 nanocoulomb. This is minus sign and this minus sign, this positive charge move along this direction, positive one, ये 2 nanocoulomb था, और अगर ये नेगेटिव हुआ it will move away from electric field, or we can say electric field positive to negative और negative charge positive की तरफ attract होगा. This is your first question. Now I am talking about second question. Calculate the electric field strength required just to support a water drop mass 10 power minus 7 किलोग्राम and having a charge of this. आपके पास वाटर की एक ड्रॉप है like this, इसका मास आपको दिया हुआ 10 पावर माइनस 7 किलोग्राम, और इस ड्रॉप पे पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है, दिस चार्ज इज 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम. अगर ये माइनस होता तो फिर ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था, ये प्रोटॉन पे होता है. तो 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम इस पे चार्ज दिया हुआ, और आपको वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसका वेट कहाँ है, डाउनवर्ड mg, वेट ऑफ द ड्रॉप, मास दिया हुआ है, जी की वैल्यू हमें बताया. अब आपको यहाँ पे चार्ज और दे दिया क्यू, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है लाइक दिस, अपवर्ड डायरेक्शन में यूँ. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ऑब्वियस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज को अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय, यू ऑलरेडी नो, इज इक्वल टू क्यू इंटू ई. ये अपवर्ड फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू इंटू ई, और ये वेट इन दोनों को इक्वल रखते हैं. तो आई कैन राइट क्यू ई इक्वल टू एम जी, एंड व्हाट इज ई, एम जी बाय क्यू. Therefore electric fields come out
to be. I am here doing question. M mass is 10 power minus 7, G value is 10, and Q charge 1.6 10 power minus 19. You cancel with this comes out to be minus 12, और इसको ऊपर ले लें आप. दिस इज 1.1 बाई 1.6, 10 पावर 13 हो गया. दिस इज योर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम. और एक यूनिट और भी होती है 1 बाई 1.6 10 पावर 13 न्यूटन पर कूलम, और इसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है. हम नेक्स्ट ये जो चैप्टर कर रहे हैं पोटेंशियल का, उसमें हम आपको बताएंगे वोल्ट पर मीटर भी इसकी यूनिट है. तो 1 बाई 1.6 10 पावर 13 माइनस 12 ऊपर चला गया, 10 ऑलरेडी है. तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड वन. एंड थर्ड, 8 identical point charges of q coulomb charge each are placed at the corner of cube of side 0.1 meter. आपके पास एक क्यूब है और उस क्यूब की आपको जो है साइड दी हुई है 0.1 मीटर, और उस क्यूब पे पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं, और यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब. Like this. हर एक साइड ए इज गिवन टू यू 0.1 मीटर. यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, चार्ज क्यू सेम चार्ज. तो सेंटर पे, इसके सेंटर पे आई वांट टू टेल यू फ्रॉम एनी कॉर्नर, इफ़ यू वांट टू find the distance from any corner. Suppose this corner is say O, this is say A point and this is O, then you can calculate AO किसी भी कॉर्नर से, वेदर A B C जो भी आप देना चाहें. तो सेंटर से कॉर्नर का ये डिस्टेंस जो होता है दैट कम्स आउट टू बी, अगर A साइड हो क्यूब की, देन यू हैव √3/2. इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, तो आपका ये सेंटर से ये डिस्टेंस आ जाएगा. और ए आपको दिया हुआ है स्मॉल ए, दैट इज इक्वल टू 0.1, और आप इसको मल्टीप्लाई कर दें √3/2. दिस इज फ्रॉम एनी कॉर्नर सेंटर का डिस्टेंस हो गया. अब क्योंकि इक्वल चार्जेस हैं, तो ये चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फाइंड आउट करोगे, टेस्ट चार्ज रखोगे यहाँ पे, तो ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, इसके अपोजिट ये चार्ज इधर रिपेल करेगा, ये इधर अपोजिट. तो जो 4 पेयर बनेंगे अपोजिट, यूं यूं यूं, जो अपोजिट पेयर बनेंगे वो कैंसिल कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0. वन पॉइंट इज दिस वन. एंड दी अनदर आई वांट टू से, इफ़ यू रिमूव दिस चार्ज, आप सपोज करो इस चार्ज को हटा देते हो, तो इसका अपोजिट पेयर ये हो गया, इसका अपोजिट पेयर ये हो गया, इसका अपोजिट पेयर ये हो गया. तो इसका अपोजिट पेयर क्या होगा, इसका कैंसिल हुआ, इसका और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो फोर्स लगेगा, लेकिन इसका कैंसिल नहीं हुआ. तो ये जो चार्ज है जो यहाँ जो यहाँ प्लेस है, जो इससे कॉर्नर से कैंसिल होना था, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई गिवन बाई एट द सेंटर. चार्ज क्या है, क्यों, क्योंकि यहाँ तो कोई चार्ज नहीं, बाकी तो कैंसिल हो गए. तो 6 आपने ये तो रिमूव कर दिया, 7 चार्जेस थे, तो 6 के कैंसिल हो गए और ये चार्ज बच गया, और इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, Q बाई 4πε0. और डिस्टेंस सपोज करो ये डिस्टेंस कुछ भी हो, आपने लिया क्या डिस्टेंस यहाँ पे A से O, या कोई भी इस A से O डिस्टेंस को सपोज मैं x कह देता हूँ, तो x², क्योंकि सभी से डिस्टेंस सेम होगा, दिस इज x², और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.1 √3/2. और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवार्ड्स रिमूव्ड चार्ज.
जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, टेस्ट चार्ज जो होगा वो दूसरा चार्ज उसको रिपेल करेगा और टुवार्ड्स जिस चार्ज को हटाया है उस चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दिस इज द पॉइंट। तो आप क्यू बाय 4πε0 और एक्स डिस्टेंस जो हमने कैलकुलेट किया वो सभी पॉइंट चार्जेस के लिए सेम था फ्रॉम सेंटर। नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 4। एक कॉपर बॉल, उस कॉपर बॉल की डेंसिटी दे दी आपको 8.6 ग्राम पर सीसी। आप इस 8.6 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करें, ग्राम को 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब है तो मीटर, पहले मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर को -2 सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर तो क्यूब इसका कर देंगे तो मीटर का क्यूब हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो यू हैव 8.6, ये पावर ऊपर चलेगी 10⁻6 हो गया और ये नीचे 3, तो ये आ जाएगा 8660 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यू कैन कन्वर्ट दिस 8.6 multiply with 1000, you have 8600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज दी, आपके पास कॉपर बॉल है, उसकी डेंसिटी दे दी, रेडियस दे दिया कॉपर बॉल का, सस इमर्स्ड इन ऑयल, और ऑयल की भी आपको डेंसिटी दे दी। अब ऑयल 0.8 है तो 0.8 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी डेंसिटी भी आ जाएगी 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चेंज कर दिया। What will be the charge on the ball if it remains suspended in electric field? अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में सस्पेंड करे तो उस पर चार्ज कितना होगा। तो लेट मी टेल यू, ये ऑयल है और ऑयल की डेंसिटी दी हुई है ρ2, दिस इज 800, मैंने चेंज कर दिया किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और आपके पास ये बॉल है कॉपर की, और इस कॉपर की बॉल की डेंसिटी कितनी दी हुई है ρ1, 8600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस कॉपर की बॉल का रेडियस भी दे दिया हमें r, ½ सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दे, -2 मीटर, ये इसका रेडियस हो गया। अब इस बॉल पे कुछ चार्ज है और आपको वो चार्ज निकालना है। सपोज करो इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऑटोमेटिक है बॉल पे, अब यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यू विल फर्स्ट फाइंड अपरेंट वेट ऑफ बॉल का अपरेंट वेट क्या है। पहली बात एक्चुअल वेट क्या है इस बॉल का, अपना वेट क्या है, और इस पे अपवर्ड थ्रस्ट कितना लगा, इसका खुद का वेट कितना है माइनस इसको अपवर्ड थ्रस्ट लगा, तो दिस इज अपवर्ड थ्रस्ट। अब ये जो अपरेंट वेट है ये तो इसका डाउनवर्ड हुआ अपरेंट वेट, जैसे बॉल नीचे की तरफ आएगी, और इसको एक फोर्स लगेगा Q इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड और Q चार्ज, दैट इज इक्वल टू Q इंटू ई। आप इसको इक्वल, तो आपका जो Q इंटू ई है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है अपवर्ड लगेगा और इसका अपरेंट वेट नीचे की तरफ होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये बॉल रिमेन सस्पेंडेड, ये इसमें खड़ी रहेगी इस ऑयल में, नीचे नहीं जाएगी ऊपर नहीं जाएगी, दोनों फोर्स जब इक्वल हो जाएंगे। तो आई कैन कैलकुलेट दिस चार्ज Q इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस अपवर्ड थ्रस्ट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअल वेट क्या है इसका बॉल का, वॉल्यूम, पहले तो मास लिखोगे इसका, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्या होगी 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, बॉल की डेंसिटी क्या है ρ1, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है मास इंटू जी, ये हो गया आपका इसका एक्चुअल वेट, माइनस अपवर्ड थ्रस्ट, जितना ऑयल हटा, ऑयल कितना हटा, वॉल्यूम तो इतना ही हटा है ऑयल का जितना बॉल का है,
और मास निकालना ऑयल का, तो ऑयल की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो ρ2 एंड आल्सो विद जी, ये वैल्यू होगी, और डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया ही हुआ है 3600, ये आपको दिया हुआ है वोल्ट। तो आप इस इक्वेशन में क्यू निकाल लेंगे। 4/3 पाई आर रेडियस दिया है आपको 0.5 10⁻², इसका क्यूब ले लें। डेंसिटी हमने पहले ही चेंज कर दी 860 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ρ1 डेंसिटी ऑफ द बॉल। जी की वैल्यू 10 पुट करें, ये सारी ρ2 डेंसिटी निकाली 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जी की वैल्यू रखें और इसको आप सोल्व करें। दिस चार्ज वैल्यू कम्स आउट टू बी, आई एम हियर डायरेक्टली राइटिंग 1.1 10⁻⁵ कूलम। आप इसको सोल्व करेंगे, दिस विल बी योर आंसर। थैंक यू।